Friends, since yesterday, we have been seeing certain expose on the then Home Minister, Mr. P. Chidambaram, and the Ishrat files. Today, it appears that certain further expose has also been made. I am reminded today of two lines of the famous legendary singer Kishore Kumar. जो बाग बहार उजाड़े उसे कौन बचाए, जो पानी आग लगाए उसे कौन बुझाए। जब पानी खुद आग लगा देती है तो आग को बुझाएगा कौन। जो सरकार खुद आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है तो आतंकवादियों को मारेगा कौन। If the government itself compromises with the national security, where will the citizens of this country go? And today I would say very candidly, not as a spokesperson of a party, but as citizen of this great country called India, that it's a sad day for the country today. It's a very sad day because the exposers, yesterday's exposers, today's exposers, have only proved one point. And the point that has been proved is that the national security of India was compromised. Ishrat Jahan case took place in 2004. From 2004 till today, despite the fact that the politicians who were ruling the country then knew everything, they were hiding it. They were keeping it under wraps. They were compromising with the national security. They all knew that Ishrat Jahan was a suicide bomber. They all knew that Ishrat Jahan was deputed by the Lashkar-e-Toiba, that is LET, to eliminate one of the prominent politicians of this country, the present-day Prime Minister, then Gujarat Chief Minister, Mr. Narendra Modi. Knowing all this, not only they kept quiet, but they conspired to stand with terrorists. And that is the reason as to why, friends, I say not as a spokesperson of a particular party, but as a citizen of this country, that it is a sad day. Because when our protectors turn perpetrators, then the citizens have to sit back and think. And today, we all have to think who were ruling us for the last 10 years. What were they doing? Mr. Chidambaram is not an ordinary person. Mr. Chidambaram, apart from the fact that he occupied many important portfolios in the last government, apart from the fact that he was a Home Minister of the country, he's an astute lawyer. He's a lawyer of repute and fame. And remember, when a lawyer of repute and fame, who knows how to play with his words, suddenly does not find his voice, suddenly does not find the right words, suddenly has to say that, well, I do not know whether I signed the file or have not signed the file. Remember, Mr. Chidambaram, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि जब एक कानूनविद, जब एक वकील, साधारण वकील नहीं, महान वकील, ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं मैंने हस्ताक्षर किया कि नहीं किया, जबकि चंद दिनों पहले कह रहे थे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, तब चिदंबरम साहब चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मैं बताऊंगा इस चक्रव्यूह का रचयिता कौन है, वह भी हम बताएंगे, मगर आप तो फंस गए। The rule of the law is, however beautifully, however masterfully you may have crafted the crime, but the rule of law is, the perpetrator would always leave certain evidence. Fingerprints would be left so that one fine day law will catch up with the perpetrator. And the signature of Mr. P. Chidambaram on the first affidavit is only the first of such evidences which has nailed Mr. Chidambaram's and the then government lies. Mr. PC, that is P. Chidambaram, thought that he had plotted
a PC, that is perfect conspiracy. But because of the evidences left by PC, his PC has been blown off. It was not a perfect conspiracy, sir. Conspiracies can never be perfect. Conspiracy to eliminate important leaders from India, conspiracy to eliminate Mr. Narendra Modi, conspiracy to fail Mr. Amit Shah. No, sir, the lid has been blown off. And today, you have been caught red-handed. But, moving ahead of this, there are far more important revelations which are coming. And what are they? On 13th of April 2011, I've just seen the expose, and I'm really taken aback. On 13th of April 2011, there was a noting on the file of Ishrat Jahan case. And the noting was from the MHA, that is Ministry of Home Affairs. But sorry friends, today I believe, after what all I have been saying about the then MHA, the MHA probably appears as manipulative hush-hush affairs. Not as Ministry of Home Affairs, it was rather manipulative hush-hush affairs. That's what was going on during the UPA regime. And the noting says on 13th April 2011 that the NIA has submitted certain important information on Ishrat Jahan. NIA ने Ishrat Jahan पे कुछ important notings की हैं, कुछ important inferences की हैं. इसलिए, since we have two affidavits, affidavit number 1, affidavit number 2, it is better to go through NIA's inferences so that all of us are in conformity. That is, these affidavits and the NIA is reading about Ishrat Jahan, they are in conformity. And friends, the expose today speaks of the fact that after going through the NIA report, which clearly spoke about Ishrat Jahan, it appears there was a meeting between the then MHA, that is the Ministry of Home Affairs, whom I call manipulative hush-hush affairs, and the then NIA. And thereafter, a letter was sent to the SIT chief in Gujarat. The letter was sent on 5th of May 2011, and the letter says that to the SIT, the letter of NIA says that we cannot share with you what David Coleman Headley had to say about Ishrat Jahan. NIA ने लिखित रूप से SIT को कहा कि हम आपसे वो साझा नहीं कर सकते हैं, हम आपके साथ वो नहीं बांट सकते हैं जो डेविड कोलमैन हेडली ने इशरत जहान के लिए कहा. So most importantly, certain part of the truth in fact was conveniently erased by the Ministry of Home Affairs then under the very nose of the perpetrator of manipulation, that is Mr. P. Chidambaram. 119-page report was submitted by the NIA after questioning, after interrogating David Coleman Headley in America. And from this 119-page report, paragraphs mentioning Ishrat Jahan's name were deleted. You did not want to share that with SIT. You wrote a letter to the SIT, said that we cannot share this because it's a hearsay. Because it's a hearsay, we cannot share with you. Now, the third part is, on 25th of June 2010, the legal attaché of the US Embassy writes a letter to the Indian Investigative Authority, that is the NIA, and says that, warns rather, that please take action. Temples in certain of your states are under threat. Temples in certain of your states are under threat because there is a suicide bomber by the name of Ishrat Jahan. And this they corroborate with the interrogation that the FBI had with David Coleman Headley. Just imagine, the FBI could warn our government. The FBI sends a letter of warning to the government that there was someone called as Ishrat Jahan who is a suicide bomber. So please be careful. A foreign national, they send us this letter of warning. And what was happening in the soils of India?
what was happening in India? The government was saying, no, Ishrat Jahan, not to worry. There's nothing called as Ishrat Jahan. She's a martyr. She's a martyr. There were the few claiming she's a martyr. There was a few claiming she's Bihar ki beti. And that is the reason as to why I say it's a sad day for the country, because just in order to pick up few brownie political points, we can stoop to this level. We can stoop to the level where we compromise with the national security. Sir, this is not just a press conference. This is not just the Bharatiya Janata Party conducting a press conference. This is a clarion call. Please, it's high time. We need to sit back. We need to think, to what extent have we degraded ourselves? What is the priority? The priority of the government is to protect the lives of innocent citizens. सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार का दायित्व होता है अपने नागरिकों के जान के साथ कोई खिलवाड़ न हो पाए, नागरिकों की जान को बचाना। डेविड कोडमेल हेडली को जो इंट्रोगेशन किया जा रहा था, वो क्यों किया जा रहा था? ताकि 26/11 में जो लोग, जो भारतीय मारे गए हैं आतंकवादी गतिविधि के कारण, उनको न्याय मिल सके। डेविड कोलमैन हेडली वॉज इंट्रोगेटेड बिकॉज justice was to be delivered to the people who died in 26/11 terrorist attack. But here was a government who was trying to protect the perpetrators of 26/11. This is a big question, and now comes the most important question to the Congress party, sir. Between the first affidavit and between the second affidavit, the first affidavit saying that Ishrat Jahan was a LET module, Ishrat Jahan was a terrorist who came here to kill Narendra Modi. And the second affidavit, which clearly keeps these facts away and goes into the territory of fiction, divorcing the fact that Ishrat Jahan was a LET agent. Between these two affidavits in the 45 days, August 6, 2009 and 30th September 2009 to be precise, what transpired? वही पी चिदम्बरम अगस्त के महीने में एक एफिडेविट में साइन करते हैं और कहते हैं कि हां, इशरत जहान एलईटी की आतंकवादी थी। वही पी चिदम्बरम 40-45 दिन के बाद दूसरे एफिडेविट में इसे हटा देते हैं। हमारा प्रश्न है, हु वॉज द कल्प्रिट? ये 45 दिन में क्या हुआ? इन 45 दिनों में पी चिदम्बरम को किसने बदला? पी चिदम्बरम के मन में किसने जहर घोला? And I am reminded of the famous novel of Agatha Christie, Murder, she wrote. And I would say, conspiracy, she wrote. Conspiracy, she wrote. And she lives in an address which is quite familiar to all of us. Mr. Chidambaram, the country wants to know, who is the she who wrote the conspiracy? Because this is a conspiracy against India. This is not an ordinary conspiracy. Had it been an ordinary political backbiting, had it been just rhetorics, it's okay, it's a democratic country, we would have smiled, forgiven and forgotten. But this is a conspiracy hitting at the very roots of India. This is a conspiracy which compromises with the security of India. So, Mr. Chidambaram, let the nation know who is the she who wrote the conspiracy, because we all know in Congress party, diktats come from a singular address. You have no other address. The remote control lies with the she. So please, Mr. Chidambaram, the country should know the truth, because this is the right of every citizen of this country to know who compromised with the security of India, who tried to deliver injustice to the ones who died in 26/11. And today, let me tell you, आज मैं बताऊं, ये जो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद दिग्विजय सिंह कहते थे, ओसामा जी के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। हाफिज सईद को पार्लियामेंट में खुद खड़े होकर उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार संदे कहते थे, हाफिज साहब,
चंद दिनों पहले जिनके लिए अफजल गुरुजी बन गए थे, याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ने के बाद जो लोग कहते हैं ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जो अध्यक्षा 3 दिन तक सो नहीं पाई, वो केवल रोती रही, ये मैं नहीं, सलमान खुर्शीद ने कहा, रोती रही, ये सब स्लिप ऑफ टंग नहीं था. These were not slip of tongues. Today it is proved that these were by design. ये यूं ही नहीं हो गया कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दिया, ये यूं ही नहीं हो गया कि अफजल गुरु को गुरु जी कह दिया, ये यूं ही नहीं हो गया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया जी को नींद नहीं आई. ये डिजाइन से हो रहा था, ये जीभ फिसलने के लिए नहीं हुआ, ये फिसलन मन में था. और जब मन फिसल जाए तो हिंदुस्तान की जनता जवाब मांगती है कि उस सरकार का अधिकार नहीं है, उस सरकार का अधिकार नहीं है कि भविष्य में वो कभी अपने आप को हितैषी के रूप में प्रोजेक्ट करे. क्योंकि जिस सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत की है, द गवर्नमेंट विच हैज डेयर्ड to play with the security of its own citizens, the government has no right to claim in the future that they are the ones who would benefit this country. कांग्रेस, मैं आपको आज कहना चाहूंगा, आपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, आपके बुरे दिन आ गए हैं. धन्यवाद. हिंदी में मैं हिंदी में हाँ, मैं अभी हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी में भी बोलूंगा ना, बोल रहा, हिंदी में ही बोल रहा. देखिए, आज किशोर कुमार के 2 पंक्ति मुझे बार बार याद आते हैं और उसका कारण भी है. वो पंक्ति मैंने सुनाया था, दोबारा सुनाऊंगा. जो बाग बहार उजाड़े उसे कौन बचाए, जो पानी आग लगाए उसे कौन बुझाए, जो सरकार खुद आतंकवादियों को पनाह दे तो जनता को आतंकवादियों से कौन बचाए. अभी 2-3 दिनों में इशरत जहां के मामले में हम सब ने देखा है कि कुछ बड़े खुलासे हुए हैं. ये साधारण खुलासे नहीं है, ये बहुत बड़े खुलासे हैं. और आज एक प्रवक्ता के नाते नहीं, किसी पार्टी के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते मैं बहुत दुखी होकर कहना चाहता हूं कि देश को बैठकर सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट, इतना बड़ा धोखा हिंदुस्तान के साथ खुद सरकार ने किया. सरकार यहां आतंकवादियों को बचाने का प्रयास कर रही थी. 2004 में इशरत जहां का केस हुआ. 2004 से अब तक उस समय जो लोग सरकार में रहे, उस समय जो प्रधानमंत्री रहे, उस समय जो पार्टी सत्ता में थी उनकी जो अध्यक्षा रही आदरणीय सोनिया जी, उस समय जो गृह मंत्री रहे आदरणीय पी चिदंबरम साहब, आप सत्य जानते थे. सत्य जानने के बावजूद भी इतने वर्षों तक न केवल आपने सत्य को दबा के रखा मगर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की. सोनिया जी, मनमोहन जी और चिदंबरम साहब, ये केवल अगर राजनीतिक वैमनस्य होता, अगर राजनीतिक लड़ाई होती तो क्षमा किया जा सकता था. क्योंकि ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां राजनीतिक उठापटक होती रहती है और होना भी चाहिए. मगर राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग के कारण आप राजनीति में आगे बढ़ जाएं, उसके कारण आप अपने एक मुख्यमंत्री के जीवन को दांव पे लगा देते हैं. आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को दांव पे लगाने से नहीं चूकते हैं. आतंकवादी को आप शहादत की ओर बढ़ा देते हैं. इशरत जहां आतंकवादी थी, वो सुसाइड बॉम्बर थी, ये आप जानते थे. यही खुलासा हुआ है. पी चिदंबरम साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. वो ना केवल बड़े बड़े मंत्रालयों को उन्होंने संभाला, बल्कि वो एक बहुत जाने माने वकील भी है. और जब वकील, इतना बड़ा वकील ये कहने लगता है, 4 दिन पहले वो कह रहे थे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया,
जो पहला एफिडेविट था वो बहुत एम्बिगुअस था, उसमें बहुत सारी गलत बातें लिखी थी, इसलिए मैंने उसे खारिज कर दिया, उसे हस्ताक्षर नहीं किया और मैंने दूसरे वाले एफिडेविट पे हस्ताक्षर किया। उसके चंद दिनों के पश्चात जब सही कागज सामने आता है और उनके हस्ताक्षर को पूरी दुनिया देख लेती है तो वही पी चिदम्बरम कहते हैं, ओहो मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने हस्ताक्षर किया या नहीं किया। तो जान लीजिए ये याददाश्त की गलती नहीं है, ये चरित्र की गलती है, ये इंटेंशन की गलती है। आपके भावना में गलती थी, याददाश्त में गलती नहीं है। आप तो जाने माने वकील है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्ताक्षर को ही भूल जाएं। आपने भुलाया, आपने नेशनल सिक्योरिटी को भुलाया अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। आज दो और बड़े खुलासे हो गए। 13 अप्रैल 2011 को उसी फाइल में जो 70 पेज की फाइल है इशरत जहां की, उसी फाइल में एक नोटिंग है 13 अप्रैल 2011 की, जिसमें कहा गया है कि अब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उन्होंने इशरत जहां पे कुछ खुलासा किया है, इसलिए अब आवश्यकता है कि जो एफिडेविट हमने कोर्ट में दिया है, एफिडेविट नंबर 1 और एफिडेविट नंबर 2, इन एफिडेविटों के साथ ये एनआईए की जो खोज अभी आई है इसको मिला के देख ले कि कहीं हम गलत तो नहीं थे। इनको मिलाने की आवश्यकता है और जब मिलाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि एनआईए तो इशरत जहां को सुइसाइड बॉम्बर बता रही है, फिदायीन आतंकवादी बता रही है, एलईटी की मॉड्यूल बता रही है। तो उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। उसके बाद जो हुआ वो कांग्रेस की तमाम तंत्र को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि उसके बाद जो 119 पेज की एनआईए की रिपोर्ट है, आज जो खुलासा हुआ है उस खुलासे के माध्यम से बता रहा हूं कि उसमें से इशरत जहां के नाम को हटा दिया गया, वो पैराग्राफ, उन पंक्तियों को, उस अनुच्छेद को हटा दिया गया जिस अनुच्छेद में इशरत जहां का जिक्र था। और तो और एनआईए जो चिट्ठी लिखती है एसआईटी को, उस चिट्ठी में कहा जाता है कि हम इशरत जहां के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, हम वो कुछ भी आपके साथ साझा नहीं कर सकते जो डेविड कोलमैन हेडली ने हमसे अमेरिका में साझा किया, क्योंकि ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, जिसको अंग्रेजी में हियरसे कहते हैं। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। एफबीआई इसे सुनी सुनाई बातें नहीं मानती है। एफबीआई हिंदुस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखती है और कहती है अपने लीगल अटैचे के माध्यम से, और हिंदुस्तान के सरकार को, हिंदुस्तान के एनआईए को वार्न करती है कि हमें यह खबर है कि आपके देश में इशरत जहां नामक एक फिदायीन आतंकवादी है जो बमों के माध्यम से मंदिरों को और अन्य स्थलों को क्षतिग्रस्त कर सकती है, आप सावधान हो जाइए। एफबीआई ने तो नहीं कहा, ये सुनी सुनाई बातें हैं। मगर चिदम्बरम साहब, मनमोहन जी, सोनिया जी, आपने इसे क्यों दबा दिया? किसको बचाना चाहते थे आप? इतनी डेस्परेशन, इतनी तड़प इशरत जहां को बचाने के लिए क्यों थी? कितने इंटॉलरेंट है आप? हाउ इंटॉलरेंट आर यू? यू टॉक्ड एंड डिबेटेड अबाउट इंटॉलरेंस। आप असहिष्णुता के ऊपर रोज शाम को हमें पूछते हैं। कितने असहिष्णु थे आप नरेंद्र मोदी जी के लिए? कितने असहिष्णु थे आप अमित शाह के लिए? आप इनको सह नहीं सकते थे। आप इन दो लोगों को सह नहीं सकते थे, आप भाजपा को सह नहीं सकते थे, आप आतंकवादी को सहने चल पड़े। हम इन्हें नहीं सहेंगे, कहीं ये प्रधानमंत्री न बन जाए, अच्छा होगा हम आतंकवाद और आतंकवादी को ही सह ले। ये टॉलरेंस है। द वंस हु आर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स देयर फेलो पॉलिटिशियंस आर टॉलरेंट टुवर्ड्स टेररिस्ट, और आप असहिष्णुता पे शाम को डिबेट करते हैं। धिक्कार है। आपने आज हिंदुस्तान के जनता के मन को, दिल दिमाग को ठेस पहुंचा दिया है, क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय सोनिया जी से। ये जो 40-45 दिन का गैप रहा दोनों एफिडेविट के बीच में, 6 अगस्त 2009 पहला एफिडेविट जिसमें कि इशरत जहां को एलईटी का मॉड्यूल बताया गया, जिसमें कि इशरत जहां को फिदायीन बताया गया, और जिसमें कि चिदम्बरम साहब का हस्ताक्षर मौजूद है। और उसके पश्चात 6 हफ्तों के बाद 30 सितंबर 2009 को जो दूसरा एफिडेविट भर्ती किया गया, जिसमें भी चिदम्बरम साहब का हस्ताक्षर है, जिससे एलईटी शब्द को हटा दिया गया, जिसमें इशरत को बचाने की कोशिश की गई। ये 40-45 दिन में, इन 6 हफ्तों में
किसने पी चिदंबरम साहब को ब्रीफ किया, ये बताइए। क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है, वो 10 जनपद है, कहीं और तो रिमोट कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। हिम्मत किसी और की, कांग्रेस में, यूपीए की सरकार में, जो 10 जनपद से आदेश न लिए बिना काम करे। तो स्वाभाविक रूप से आज एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे कांग्रेस पार्टी और यूपीए पर है। हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहना, ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी कहना, बाटला हाउस एनकाउंटर के पश्चात 3 दिन रोना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, ये डिजाइन था। आज ये प्रूव हुआ है। धन्यवाद। देखिए, धीरे, आपका प्रश्न उचित है। सरकार, पार्टी, हिंदुस्तान की जनता, इन सभी का एक ही दायित्व है। वो दायित्व है सच्चाई देश के सामने आए और जो गलत हैं उनको देश के सामने बेनकाब किया जाए। कानून जरूर अपना काम करेगी। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्वाभाविक रूप से इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक लोकतांत्रिक देश में पहले एक्सपोज किया जाता है, फिर कानून अपना काम करती है और अंततोगत्वा जो मिथ्यावादी हैं, जो गलत थे, जिन्होंने गलत काम किया, वो कटघरे में भी आते हैं। आश्वस्त रहिए, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की माटी के साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रखा है, वो कभी भी बच नहीं सकते। देखिए, कल खुद हिंदुस्तान की सरकार से निर्मला सीतारमण जी ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। जब उनसे प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से हूं, मैं सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, मगर सरकार की मंत्री ने खुद कहा था कि गंभीर विषय है, इस पे सरकार जरूर काम करेगी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सीरियसनेस, द गवर्नमेंट विल श्योरली एक्ट ऑन दिस। किसने किया? देखिए, मैं इसमें इतने डिटेल्स पे नहीं जाके, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने देश के गृह मंत्री के रूप में कुर्सी संभालते हुए देश के राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया हो, उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? कि हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ देना चाहिए। कभी भी अलोकतांत्रिक, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर यह भी सच्चाई है कि ऐसे लोगों को आईना जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी की अध्यक्षा यही लोग धोखा करने लगे तो जनता कहां जाएगी? नहीं, देखिए, आज जो मुख्य मुद्दा है उससे हमें भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इससे भटकेंगे तो वो उचित नहीं होगा। जिन प्रश्नों को आपने उठाया, उचित समय पर उस पर भी जवाब देंगे। धन्यवाद। See, what the Congress is conveniently doing is, we all are aware of the fact that as far as the Ishrat Jahan case is concerned, we have to look the whole thing through two different aspects. One aspect is whether Ishrat Jahan was a terrorist or not, or whether the encounter was right or not. This is the second aspect. As far as the encounter is concerned, I would limit myself from not commenting upon it because it is sub judice. I do not go into the domain of justice. But as far as whether she was terrorist or not, the Congress is conveniently keeping a silence on this, conveniently not speaking on this, because they were conspiring all the while till today to see to it that she is not declared a terrorist. And in fact,
whatever the facts they were supposed to submit in the court as well, to the SIT as well, were being kept back. We saw right now as to how, at the behest of the Home Ministry, that is the MHA, in fact, certain most important documents were not subjected for scrutiny to the SIT. So naturally, when you do not give up the whole document, you do not submit the complete truth, the truth will not be out. Thank you. It's a party issue, but someone else will take up that. Thank you.